یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 24 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ ترکی میں فضائی حادثہ، لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد جاں بحق۔ This is where the plane's wreckage was found. جانیے لیبیا کے آرمی چیف کی ہلاکت پر پاکستانی سوشل میڈیا پر غیر معمولی دلچسپی کیوں؟ پرتشدد مظاہرے، قتل کے واقعات اور الزامات۔ جانیے بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات کا تاریخی بحران شدید تر کیوں ہو رہا ہے؟ انڈین وزیر گری راج سنگھ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ انڈیا کا بلو برڈ بلاک 2 سیٹلائٹ خلا میں چھوڑنے کا مشن مکمل۔ 3 2 1 0 Both S-200 motors ignited. بیڈنگ باکس پر نصب کیمرہ، وسیع میڈیا کوریج اور مبارک باتیں۔ جانیے PIA کی فروخت کے عمل کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا۔ جو پروسیس تھا بیڈنگ کا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ شروع میں 3 بیڈز آئی تھیں۔ جو تیسرے بیڈر تھے عارف حبیب اور لکی سیمنٹ کے علاوہ، وہ ایئر بلو تھے، لیکن ان کی بیڈ بہت ہی کم تھی، جو کہ 20-26 بلین روپے کے قریب تھی، تو اس لیے وہ پہلے مرحلے کے اندر ہی بائے ہو۔ نیٹ میٹرنگ سے کراس میٹرنگ تک، جانیے سولر صارفین کے لیے نئی پالیسی کا کیا مطلب ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کنزیومرز تھے وہ بڑی مشکل سے سولر سسٹم انسٹال کر رہے تھے، اور اب صورتحال نئی پالیسی کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی بل دینے پڑیں گے، مہنگے بلوں سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اور پنجاب کی سڑکوں پر پنجابی محاورے، نوجوانوں کا دلچسپ رد عمل۔ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا، یہ وہ نصیحت ہے جو گھروں میں امیاں یوزلی بچوں کو دیتی ہیں جب وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے ہیں اور گھر میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نصیحتیں وہ تمام تر سائن بورڈز کے ذریعے عوام اور ینگسٹرز تک پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ترکی میں پیش آنے والے ایک فضائی حادثے میں لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ فالکن 50 بزنس جیٹ میں اپنے وفد کے ارکان کے ہمراہ انقرہ سے طرابلس جا رہے تھے کہ پرواز کے تقریباً 19 منٹ بعد جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ترک حکام کے مطابق جہاز نے تکنیکی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی، تاہم کچھ ہی دیر بعد وہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ جہاز کا ملبہ انقرہ سے تقریباً 105 کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک دیہی علاقے سے ملا، جو 2 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ حادثے میں جنرل الحداد کے ساتھ لیبیا کے کئی سینئر فوجی افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ This is where the plane's wreckage was found. امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC نیوز اور ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے عملے کے ارکان لیبیا کے نہیں تھے، تاہم ان تینوں افراد کی شناخت اور قومیت سے متعلق تاحال تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ یاد رہے کہ لیبیا میں 24 اور 25 دسمبر کو یوم آزادی کی تقریبات کا انعقاد ہونا تھا، تاہم اس حادثے کے بعد وزیر اعظم دبیبہ نے سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 دن تک تمام ریاستی اداروں پر پرچم سرنگو رہیں گے، جبکہ تمام سرکاری اور جشن کی تقریبات معطل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ترکی اور لیبیا کی جانب سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے قریب فضائی حادثے میں لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت یعنی قومی حکومت اتحاد کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد کی ہلاکت کی خبر پاکستانی سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے اور ایکس پر ٹرینڈ بھی کر رہی ہے۔ پاکستانی صارفین کی دلچسپی کی بڑی وجہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ ہے، جہاں انہوں نے بن غازی میں لیبیا نیشنل آرمی کے نائب سربراہ صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات کی تھی۔
इस पस मंजर में कई सार्फिन ये सवाल उठाते नजर आए कि आया हादसे में हलाक होने वाले जनरल वही हैं जिनसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी। दर हकीकत ये इबाम लीबिया के पेचीदा सियासी व अस्करी निज़ाम की वजह से पैदा हुआ है, जहां बरसों की खाना जंगी के बाद दो मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हैं। तेल की दौलत से मालामाल लीबिया में जारी खाना जंगी के बाद मुल्क की मशरक और मगरबी इलाकों में दो हरीफ मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हैं जिनके पास लीबिया का कंट्रोल है। दोनों हुकूमतों के दारुल हुकूमत भी अलग अलग हैं, यानी एक हुकूमत बिन गाजी से चल रही है और दूसरी हुकूमत का निज़ाम तराबलस से चलाया जा रहा है। सन 2021 में लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में हुकूमत बराए कौमी इत्तेहाद या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कायम की गई। इस हुकूमत के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद दबीबा हैं और उनकी हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत करार दिया गया है। लेकिन अगले ही साल लीबिया के मशरकी इलाके के अराकीन पार्लिमान ने हुकूमत बराए कौमी इस्तेकाम के नाम से हरीफ हुकूमत कायम की। उन्होंने बिन गाजी को अपना सदर मुकाम करार दिया। लीबिया के मशरकी इलाकों में कायम हुकूमत बराए कौमी इस्तेकाम या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी के इस वक्त वज़ीर आज़म उसामा हम्माद हैं। लीबिया के मशरकी इलाकों में लीबिया नेशनल आर्मी भी सरगर्म है, जिसके कमांडर जनरल खलीफा हफ्तर हैं। जनरल खलीफा हफ्तर की सरबराही में लीबिया नेशनल आर्मी किसी हद तक बिन गाजी की हुक्मरान जमात के कौमी इस्तेकाम की मदद करती है, क्योंकि ये दोनों गिरोह तराबलस में कायम वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद दबीबा की हुकूमत के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया नेशनल आर्मी के नायब सरबराह सद्दाम खलीफा हफ्तर से बिन गाजी में मुलाकात की थी, जबकि तुर्की में होने वाले फिजाई हादसे में तराबलस में कायम हुकूमत बराए कौमी इत्तेहाद की फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी सार्फिन की दिलचस्पी की वजह हालिया पाक लीबिया अस्करी रवाबत, मुमकिन दिफाई ताउन की खबरों और लीबिया के दोहरे निज़ाम हुकूमत के बाइस पैदा होने वाला तजब्जब है, जिसने इस खबर को पाकिस्तान में नुमाया बना दिया है। बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दद मुजाहरों के दौरान एक हिंदू शहरी के कत्ल ने बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद संगीन बना दिया है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हालात ख़राब करने के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। सफारती अमले को तलब किया जा रहा है और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल की जा चुकी हैं। ये कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद मुजाहरे शुरू हुए और उसी दौरान एक हिंदू शख्स को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुश्तइल हजूम ने हलाक कर दिया। इस वाक़े पर इंडिया में शदीद रद्द अमल सामने आया, जबकि बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ जज्बात मजीद भड़क उठे। तजियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश में 2 दहाइयों से जारी सियासी अदम इस्तेकाम, शेख हसीना की माजूली और उनकी इंडिया में मौजूदगी, अक़लियतों पर बढ़ते हमले और मजहबी इंतहा पसंदी ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। दोनों जानिब दाएं बाजू के गिरोहों की इश्तियाल अंगेजी ने अवामी गुस्से को हवा दी है। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में अमन और इस्तेकाम न सिर्फ इस मुल्क बल्कि इंडिया की इलाकाई सलामती के लिए भी ज़रूरी है। ताहम जब तक बांग्लादेश में एक मुंतखब हुकूमत कायम नहीं होती, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात महदूद दिखाई देते हैं। इंडिया के वज़ीर गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के हालिया पुरतशद्दद वाक़यात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में होने वाले तशद्दुद पर मबनी वाक़यात अफसोसनाक हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मौजूद एक वीडियो में साफ़ियों के सवाल के जवाब के दौरान इंडियन वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया इन वाक़यात पर हैरान है। उनके मुताबिक मेरा ख्याल है कि कुछ लोग बंगाल में भी बांग्लादेश का तस्वुर कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी शायद यही सोच रही हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई। इंडिया के खबर रसा इदारे ANI के मुताबिक ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ मदार में छोड़ने का मिशन बखूबी मुकम्मल हो गया है। याद रहे कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 खसूसी कमर्शियल मिशन है जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6LV M3 के जरिए अंजाम दिया गया है। खबर रसा इदारे ANI ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक्स पर की गई पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस तजर्बे को खलाई शोबे में एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि LV-M3 लॉन्च ने अमरीकी खलाई जहाज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को उसके मुकर्रर मदार में पहुंचाया है।
ये इंडिया की सरजमीन से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी सैटेलाइट है, जो हमारी खलाई सफर में एक फखर का संगे मील है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये तजुर्बा इंडिया की हैवी लिफ्ट लॉन्च सलाहियत को मजीद मजबूत करता है और आलमी कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारे बढ़ते हुए किरदार को तकवीयत देता है। हमारे मेहनती खलाई साइंसदानों और इंजीनियरों के बाइस इंडिया खलाई दुनिया की मुसलसल बुलंदियां छू रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी एक और पोस्ट में मुल्क के खलाई प्रोग्राम की इस्तेदाद से मुतल्लक दावा किया है कि इंडिया के नौजवानों की ताकत से तकवीयत पाने वाला खलाई प्रोग्राम इसरो इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ जदीद और मौसर होता जा रहा है। इंडिया के खलाई इदारे इसरो के मुताबिक ये मिशन LVM-3 की छठी ऑपरेशनल फ्लाइट है। LVM-3 जिसे गगनयान के लिए मखसूस लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है और वो इन मिशंस में अहम किरदार अदा करता है जिन्हें ज़्यादा पे लोड सलाहियत दरकार होती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक निजी होटल में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए होने वाली बोली के अमल को गैर मामूली सिक्योरिटी कैमरों और बराह रास्त मीडिया कवरेज के साथ मुकम्मल किया गया है। बंद लिफाफों में बोलियां शीशे के बिडिंग बॉक्स में जमा की गईं और बाद अज़ां सबके सामने खोल दी गईं। पाकिस्तान की कौमी फिजाई कंपनी PIA की निजकारी के अमल में मजीद क्या कुछ हुआ, ओपन बिडिंग कैसे आगे बढ़ी, कौन सी बोलियां लगीं और आखिरकार आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली कैसे जीती। बिडिंग के पसपर्दा तमाम तफसीलात जानिए उमर दराज नंगियाना की इस खसूसी रिपोर्ट में। जी, वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट आरिफ हबीब कंसोर्शियम। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग का प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया है और जो फाइनल विनर हैं वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम सामने आए हैं। उन्होंने 135 बिलियन रुपीज़ में ये जो बिड है ये जीती है। जो प्रोसेस था बिडिंग का वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि शुरू में 3 बिड्स आई थी। जो तीसरे बिडर थे आरिफ हबीब और लकी सीमेंट के अलावा वो एयर ब्लू थे, लेकिन उनकी बिड बहुत ही कम थी जो कि 20-26 बिलियन रुपए के करीब थी। तो इसलिए वो पहले मरहले के अंदर ही बाहर हो गए और उसके बाद क्योंकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट कंसोर्शियम दोनों की बिड्स मिनिमम प्राइस जो कि 100 बिलियन रुपीज़ की थी उससे ज़्यादा थी, तो इनके दरमियान फिर ओपन बिडिंग के अंदर मुकाबला हुआ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब शुरू में बिडिंग स्टार्ट हुई तो लकी सीमेंट कंसोर्शियम जो है वो काफ़ी मोहतात चल रहे थे, वो छोटे छोटे इंक्रीज़ या इंक्रीमेंट्स जो हैं वो कर रहे थे। शर्त ये थी कि आप 25 करोड़ यानी 250 मिलियन रुपीज़ से कम का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ही आप करेंगे। तो वो शुरू में ऐसे ही कर रहे थे कि जब उन्होंने पहले 115 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की आरिफ हबीब की जो प्राइमरी बिड थी उसकी प्राइस को मैच किया, तो उसके बाद उन्होंने ऊपर सिर्फ 25 करोड़ का इजाफा किया और उसके बाद दोनों के दरमियान जब मुकाबला शुरू हुआ तो इसी तरह 25 करोड़ और फिर आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से जो है वो थोड़े ज़रा बड़े बड़े जंप सामने आ रहे थे। एक मौके के ऊपर ऐसा लगा कि शायद एक जो बिडर है वो गिव अप कर देगा, लेकिन वहाँ पे जो लकी सीमेंट कंसोर्शियम है उन्होंने कहा कि हम 30 मिनट की ब्रेक लेंगे और हम उसके अंदर कंसल्टेशन करेंगे। और उस वक्त आरिफ हबीब की जो ऑफ़र थी वो 122 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के ऊपर थी। इस आधे घंटे की ब्रेक के दरमियान जब उन्होंने आपस में मुशावरत की और फिर वो दोबारा वापस आए तो लकी सीमेंट ने काफ़ी बड़ा जंप लिया। उन्होंने 3 से 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का इजाफा किया अपनी जो बिड थी उसके अंदर और उन्होंने आरिफ हबीब की बिड को टॉप किया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि वो जो लोग लकी सीमेंट कंसोर्शियम के वहाँ पे बैठे हुए थे वो आपस में मशवरा करके और उसके बाद टाइम लेकर और फिर बिड करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से आए हुए थे वो बग़ैर कोई टाइम लिए उसको टॉप कर देते थे। तो ये सब जब चलता रहा तो 135 पे आके मामला रुका। उसके बाद जो लकी सीमेंट कंसोर्शियम उन्होंने आपस में मुशावरत की और फिर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो अब होगा ये कि अगले मरहले के अंदर जो विनर है उसको जो रिमेनिंग 25% स्टेक्स हैं वो भी ऑफ़र किए जाएंगे और ये उनको 12% एनुअल प्रीमियम के ऊपर मिलेंगे और अगर वो ये ख़रीद लेते हैं तो फिर वो 100% के मालिक हो जाएंगे। आरिफ हबीब ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे बात भी की। वो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा उनकी तवक्कुआत से ओवरबिड हुआ है। आई बिलीव कि 15-20 बिलियन का ओवरबिड है, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हमने लकी ग्रुप से कहा था कि वो हमें इनिशियली ज्वाइन कर लें ताकि रीज़नेबल वैल्यू पे जो है वो एंटिटी जो है वो मिल सके। लेकिन मुझे खुशी है कि ये पैसे जो है
कंपनी में ही जाएंगे ज़्यादातर, कुछ पैसे गवर्नमेंट को भी जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगे, बट इससे एक सेंटिमेंट जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बेहतर होगा। दुनिया भर में लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं कि जो नेशनल एयरलाइन को एक्वायर कर सकते हैं, और चूँकि ये कंपनी में ही जो है वो सारे पैसे जाएंगे, तो अब काफ़ी सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल होगा इसकी डेवलपमेंट के लिए। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे जो यूज़र्स हैं एयरलाइन के, आवाम हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब सर्विसेज बेहतर होंगी। पास्ट में हमने मुख्तलिफ प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लिया, उसमें किसी में भी हमें प्रीवियस तजर्बा नहीं था। हम सीमेंट में गए, हम स्टील में भी हमने अपने आप को ऑफ़र किया था, हमने जो है फर्टिलाइज़र में भी गए, हम जो है रियल इस्टेट में भी जो है वो गए तो था। लेकिन पाकिस्तान के पास जो है बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। अगर उन अच्छे प्रोफेशनल्स को हम पूरा मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो कोई वजह नहीं कि हमारे ये सारे इदारे, तो एयरलाइन में जो PIA में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको पूरा जो है वो मौका देना होगा, उनको कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं ऑफ PIA, तो उन्हीं को चलाना है। तो ये आपके पास दो की गुंजाइश है, आप इरादा रखते हैं कि और इन्वेस्टर्स को साथ मिलेंगे? उसमें जी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि PIA के जो मुलाजमीन हैं एग्जिस्टिंग, उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि इसी जो एग्जिस्टिंग लॉट है, वो वर्क फोर्स है, इसी के अंदर से वो PIA को चलाएं। आरिफ हबीब जो हैं वो ये कह रहे थे कि उनका जो बिज़नेस प्लान है उसमें वो चाहते हैं कि PIA जो है उसकी पास्ट ग्लोरी को वो रिस्टोर करें, और इसके लिए वो जो इक़दामात करने का इरादा रखते हैं उसमें वो 20+ प्लेन्स जो हैं वो इमीडिएटली PIA के अंदर ऐड करना चाहते हैं। और वो कह रहे थे कि अगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो वक्त के साथ साथ उसके अंदर मज़ीद प्लान्स भी ऐड करेंगे, और जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको भी ऐड करके PIA को फुली ऑपरेशनल करेंगे। पाकिस्तान में सोलर तवानाई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बाद नेपरा ने नेट मीटरिंग की बजाय ग्रास मीटरिंग मुतारफ कराने की सिफारिश कर दी है, और इस ज़िमन में नए कवायद व ज़वाबित जारी किए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन ग्रिड से बिजली खरीदने और सोलर से पैदा होने वाली बिजली फरोख्त करने के लिए अलग अलग मीटर इस्तेमाल करेंगे, जबकि दोनों के निर्ख भी मुख्तलिफ होंगे। ग्रास मीटरिंग में सार्फिन ग्रिड से ली गई बिजली आम टैरिफ पर खरीदेंगे, जबकि सोलर से पैदा होने वाली बिजली हुकूमत को तकरीबन 11 रुपए 30 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। ताहम जो सार्फिन पहले से नेट मीटरिंग मुआहिदों के तहत बिजली फरोख्त कर रहे हैं, वो अपनी 7 साला मुआहिदा मुद्दत पूरी होने तक 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली फरोख्त करते रहेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीली बिजली के शोबे पर बढ़ते दबाव, ऑन ग्रिड बिजली की तलब में कमी और कैपेसिटी पेमेंट्स के बढ़ते बोझ की वजह से की गई है, जिसका असर ज़्यादातर आम सार्फिन पर पड़ रहा था। अगरचे नई पॉलिसी से सोलर सार्फिन के माली फ़वाइद कम हो सकते हैं, ताहम माहिरीन का कहना है कि महंगी बिजली के बाइस सोलराइजेशन का रुझान मुकम्मल तौर पर रुकने का इम्कान कम है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत ने पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ और अवामी आगाही के लिए सड़कों पर पंजाबी मुहावरों पर मबनी साइन बोर्ड नस्ब किए हैं। इन मुनफरिद और दिलचस्प पैगामात ने ख़ास तौर पर नौजवानों की तवज्जो हासिल की है। रिपोर्टर तुरहब असगर ने नौजवानों से गुफ्तगू की और उनसे कहा कि वो ये पंजाबी साइन बोर्ड पढ़कर सुनाएं और बताएं कि वो इन पैगामात को किस तरह देखते और समझते हैं। आप भी सुनिए। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं लबना, ये वो नसीहत है जो घरों में अम्मियाँ यूजुअली बच्चों को देती हैं जब वो कोई काम काज नहीं करते हैं और घर में फारिग बैठे रहते हैं। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये नसीहतें वो तमाम तर साइन बोर्ड्स के जरिए आवाम और यंगस्टर्स तक पहुंचाएंगी। इस सड़क पे थ्रू आउट इस किस्म के बोर्ड्स लिखे गए हैं जिसमें पंजाबी का इस्तेमाल किया गया है, अवेयरनेस कैंपेन के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। इस बारे में हमने कुछ यंगस्टर्स से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की क्या उनके लिए पंजाबी पढ़ना और इन साइन बोर्ड्स को समझना आसान है या मुश्किल है। आइए सुनवाते हैं वो क्या कहते हैं। ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा मुझे। अब ये क्या फ़ोन छोड़ो और हैंडल पकड़ो, फ़ोन छड़ हैंडल पकड़। हाँ, अब ये तो मैं भूलूंगा नहीं, मैं ड्राइव करके भी आ रहा हूँ, ये मुझे याद रहेगा कि इस रोड पे ये साइन है तो फ़ोन तो मैंने हाथ नहीं लगाना। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं लगना, मतलब अगर तुम फारिग बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, मेहनत कर, सड़िया ना कर। मेहनत करो, बैठ के सड़ो मत। ये मुझे समझ आ गया। चंगे होएगा ते सब बेली कोई समझ इतनी गहरी मुझे भी नहीं आती, किसी भी नहीं आती है वैसे। अच्छे वक्तां दे सारे बेली
مطلب جہاں تک میرا خیال ہے یہ ہے کہ انسان جب اچھا ہوتا ہے تو ہوائیں بھی اس کے ساتھ اس کی ہی فیور میں چلتی ہیں, ہر چیز اس کی فیور میں چلتی ہے. جہاں پہ اس کو لگتا ہے اس کا وقت تھوڑا سا برا چلے تو سب سے پہلے جو اپنے ہیں وہ سائڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں, زیادہ تر تو نہیں پڑھ سکتے. کتنے لکھایا جن مان ستایا رکشا چلایا, میں نہیں دیکھا اجے تک. دسو کہ ستایا اج کل دی عوام نک نک ستاندی ہے ماواں نوں, گالاں کردی ہے عوام, انہوں رشکا چلا لیا. تو مان ستایا گا رب تینوں پوچھے گا. آئی تھنک دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں, وہ لینگویج کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی, اور ساتھ ساتھ سیٹائر بھی رکھا ہے تو بچے یاد بھی رکھیں گے, لوگ یاد بھی رکھیں گے. سیٹائر کو تھوڑا اچھا رسپونڈ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو لائک ایڈوائس دو نے وہ نہیں سنیں گے. پنجابی سکھانے کے لیے بھی کسی طرح اور فن وے میں بھی ہے, اور کچھ یہ بھی ہے کہ آپ سیکھ بھی سکتے ہو کیونکہ ان میں لینگویج جو بھی ہے لیکن ان میں ایک سبق ہے, لیسن ہے. چیف منسٹر پنجاب کا ایک ویژن یہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں پہ پنجابی لینگویج ہے تو پنجابی زبان کی ترویج کے لیے بھی کام کرنا چاہیے, اور وہ ترویج بھی ایسے ہو کہ ساتھ آپ اس میں لوگوں کو ایڈوائزری بھی ایشو کر رہے ہو, ان کو لیے کوئی نصیحت بھی ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موبائل شٹ ہینڈل پھڑ, مقصد یہ کہ آپ موبائل ڈرائیونگ کے دوران استعمال نہ کریں بلکہ توجہ اپنی ڈرائیونگ پہ ہے. تو یہ دونوں کام ہیں کہ اپنی زبان کی ترویج کے لیے بھی کام کریں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ایک نصیحت کا ایک پیغام بھی دے رہے ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.